at S&P Global Marketing Intelligence, having agile experience of more than 13 years. He is Advanced Certified Scrum Master, Professional Certified Scrum Master, a Certified Agile Coach, Certified Lean Sigma Yellow Belt. He has management and leadership experience of about 12 years. Moreover, he is the president of Pakistan Agile Education Islamabad chapter. Please welcome Abdul Hasim Khan. Thank you, Bushra. Uh, just one thing, guys. It's maybe it's not Khan, but it's Qasim. So Abdul Hasib Qasim, and thank you for taking our time and joining this session. So there are some ground rules that I would actually want to set before we go ahead. During any point in time, please feel free to unmute yourself, right? Because I would really want that we should actually take this thing as a conversation rather than me just talking and talking and talking, right? So can you guys please unmute yourself and confirm that you can hear me, and also we can hear you as well. Yep, we can hear you. Fine. Good, I can hear you as well. So anyone else would want to have a voice check or audio check before we move? Go ahead. Yes, we can listen you. All right, perfecto. So agile leadership. Before we go and talk about agile leadership, let's talk about one more thing, which is leadership. I hope all of you are aware about this term. So if any one of you can please unmute and share your understanding of what do you think what leadership is? Anyone? Could you please repeat your question, Hasim? So there's a term named leadership. So what is your understanding about the term leadership? What actually that thing means? The one who leads the team, who join the team or connect the team. Okay. So maybe all these terms like, someone who's leading from the front, कोई ऐसा बंदा जिसको शायद follow किया जा रहा हो, right? Somebody who can influence a group of people or individuals to follow the right path to the target. Okay. Okay. So मतलब कि एक ऐसा बंदा लीडरशिप से हमने एक ऐसा बंदा हमारे दिमाग में आया जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है और हमें किसी एक पैथ पे लेके चल रहा है, right? Yep. Okay. So yes, definitely. जब आप leadership की बात करेंगे, so that's exactly what that thing means. However, when we talk about agile leadership, right, it's a little different. आप लोगों में से कभी किसी ने कोई कॉर्नफील्ड देखा है, जिसको आप कह सकते हैं मकई का खेत? किसी ने कभी देखा हो मकई का खेत या किसी भी किस्म का कोई खेत, कोई फार्म जहां पर पौधे उगाए जा रहे हो? Yes. यस, ओके। सो जब हम किसी उसकी बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, सो एक फार्मर जो है वो वहां पे क्या करता है? क्या वो छोटे छोटे पौधे जब निकल रहे होते हैं उनको पकड़ के ऊपर से खींचता है? उनको जाके कह रहा होता है कि यार मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करता हूँ, बड़े हो जाओ? यस, नो, मे बी? No. नो। वो क्या करता है? Care, nurture. केयर नर्चर इन फॉर्म ऑफ मतलब वो ख्याल रखता है कि उनको सनलाइट मिल रही हो, वो ख्याल करता है कि उनको पानी टाइम पे मिल रहा हो, मुनासिब क्वांटिटी में मिल रहा हो, राइट? यही सारे काम एक बंदा कर रहा होता है, राइट? Yep. सो बेसिकली वो फार्मर कर क्या रहा है? वो फार्मर जो है वो उसके लिए एक राइट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है उस छोटे से प्लांट के लिए। और होता क्या है कि वो प्लांट जो है वो फिर आहिस्ता 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 करके ग्रो करता जाता है, राइट? Same is the thing with agile leadership. So when we talk about leadership, yes, that
सेम डेफिनेशन जो कि अभी हमने डिस्कस की थी कि एक बंदा होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो सबको लेके किसी एक साइड के ऊपर चल रहा होगा. दैट्स डेफिनेटली ट्रू व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल लीडरशिप. But when we talk about agile leadership, it's all about providing the right environment, the right culture for your team and to the individuals ताकि वो grow कर सकें. Difference कुछ clear हुआ? If there is any question, तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं. All right, I'm taking as no questions. So, agile leadership, the craft of creating the right context for self-organizing teams. एजाइल की हम जब भी बात करते हैं हम यकीनन ये वाली बात करते हैं कि जी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होनी चाहिए. सो एजाइल लीडरशिप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमने जो है वो राइट कॉन्टेक्स्ट सेट करना है और एजाइल टीम्स के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, राइट एनवायरनमेंट जहां पर वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ काम करते हुए सीख सकें. वो जो हम एक बात कहते हैं ना, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. सो दैट इज समथिंग वेरी एविडेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एजाइल लीडरशिप. एंड उसके साथ क्विक फीडबैक फ्रॉम यूजर्स एंड देन फोकस ऑन क्वालिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग. दैट इज समथिंग, अगर हम इसको सम कर लें तो ये सब कुछ क्या बन जाता है, एजाइल लीडरशिप. जहां पर कहीं से भी बात नहीं है कि नहीं जी आपने लीड फ्रॉम फ्रंट करना है, यू एक्चुअली हैव टू टेक पीपल टू द इन्फ्लुएंस करना. आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आपने सिर्फ लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने पीपल के लिए आपने राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर वो ग्रो कर सके. मूविंग फॉरवर्ड, एजाइल लीडरशिप कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो कि यकीनन पता होने चाहिए. इन स्कोप, स्टाइल एंड कैपेसिटी ट्रेडिशनल लीडरशिप से डिफरेंट होता है, राइट. ट्रेडिशनल लीडरशिप के बारे में जो भी मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि ट्रेडिशनल लीडरशिप इज मोर अबाउट दिस थिंग कि जी हमें जो है वो लीड करना है, यहाँ पर हमें लोगों के लिए राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. ये स्कोप भी चेंज हो गया, स्टाइल भी चेंज हो गया और जिस कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं वो भी चेंज हो गया, राइट. Culture, ownership, mindset, feedback, and long-term goals. These are the things when you are practicing agile leadership. These are the things where actually your focus should always be. 3 C's: communication, commitment, and collaboration. These are the basics of agile leadership. ये तमाम जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो इन 3 C's के ऊपर खड़ी हुई है. Long-term quantum of agility. That's also something very important कि जो होनी चाहिए. अब बात हम करेंगे कि अच्छा हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली कि वी नीड टू क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर द टीम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन करते कैसे हैं. सो नाउ फोकस एरियाज कि हम ये काम करते कैसे हैं. सो को क्रिएट गोल्स, हमने बात की थी कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें. फैसिलिटेट ओनरशिप, दैट्स आल्सो समथिंग कि जो ओनरशिप एरियाज हैं हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं. लर्न फास्टर, दैट्स अनदर थिंग. एंड देन डिजाइन हेल्दी हैबिट्स. सो इन 4 चीजों को यूज करते हुए या इन 4 एरियाज के ऊपर फोकस करते हुए हम जो है वो एजाइल लीडरशिप को प्रैक्टिस करते हैं. नाउ व्हाट एक्चुअली दीज थिंग्स मीन. को क्रिएट गोल्स मतलब ये क्या बात हो गई. फैसिलिटेट ओनरशिप, मे बी आई अंडरस्टैंड इट, मे बी नॉट. लर्न फास्टर, ऑलराइट, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, बट हाउ टू डू इट. हेल्दी हैबिट्स, या आई हेल्दी हैबिट्स तो यकीनन हर एक के लिए जरूरी होती हैं. हाउ टू डू समथिंग प्रैक्टिकल कि जिसमें आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो. 2 घंटे वहाँ द नेक्स्ट थिंग, जेल लगा देता हूँ. फर्स्ट टाइम निकाल दिया था मैंने. मुझे करो बास्केट में. you may want to mute yourself, or Bushra, if you can please mute whoever is talking. Yes, I have done that. All right, thank you. So these are 8 tools, practical 8 tools that one leader can use to practice agile leadership. And when someone practice these tools, what the outcome gonna be? A self-organizing team. Obviously, जब से हम agile के बारे में सुन रहे हैं हम ये बात जरूर करते हैं कि जी self-organizing team, Scrum के बारे में बात कर लें, self-organizing team, right? But how to create a self-organizing team? So agile leadership is
about that thing कि लोगों को खुद पता उन्होंने क्या करना है, वो अपना काम खुद कर सकते हो, राइट, इंडिपेंडेंट हो, राइट, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो, दूसरे के साथ चल रहे हो, वो स्क्रम वैल्यूज, एजाइल वैल्यूज जो कि हम जिनके बारे में हमेशा बात कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, हाउ टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, ऑल दीज थिंग्स, ये बात आ जाएगी या ये टूल्स आ जाएंगे इसके अंदर करते हुए जिनके ऊपर अभी हम मजीद इन डेप्थ जाएंगे, राइट. Due to the time constraint, I obviously will not be able to touch base on each and every one of them, but I'll pick at least two of them, or we'll discuss at least two of these tools जिनको use करते हुए हम जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं. So the very first thing, do you have any question? All right, okay. So the very first thing, that is KVI. किस किसने वर्ड सुना हुआ है KPI और OKRs? All right, I got one raise of hand, two raise of hands, right, three raise of hands, right. So the KPI means key performance indicator. Anyone कोई बता सकता है कि understanding क्या है KPI की, कि what actually is the KPI? Anyone? Okay. So KPI is something जहां पर आप अपनी performance को measure कर रहे हैं, because it's simply key performance indicator, some indicator which is actually showing कि हाँ जी आपकी performance जो है वो इस वक्त कैसी है. Key performance indicator, right? KVI, on the other hand, is something which is key value indicator. So instead of looking at this thing, when we talk about KVI, so instead of looking at this thing, how we are performing, we actually look at this thing, what's the value that we are providing to our customers? Because obviously there could be something, right? वो एक एग्जांपल देता हूँ. यूजुअली हम जब समर्स की बात होती है तो उसमें एक नाम हम जरूर सुनते हैं कि सिबी. ऑब्वियसली टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, राइट. सो इफ समवन opens up a shop in Sibi area, और वो शॉप हो बेसिकली क्या कहते हैं इसको, विंड ब्रेकर्स की. नाउ दोज विंड ब्रेकर्स, शॉपकीपर ने शॉप भी खोल ली, उसने ले जाके सब कुछ वहां रख भी दिया. His key performance indicator, all his shelves are full, he's ready to do business over there, that is fine. But customers के लिए वो क्या value generate कर रहा है? No one need a windbreaker over there. That's probably not Canada, not Western North America, जहाँ पर जो है वो आपको विंड ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे विंड ऐसी होती है, इतनी शदीद ठंड होती है वहाँ पे कि आपको विंड ब्रेकर्स की जरूरत पड़े, ठीक है. बट सिबी के अंदर वहाँ जरूरत नहीं है. सो कस्टमर्स के लिए वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, इवन दो के परफॉर्मेंस इंडिकेटर कह रहा होगा कि यस एवरीथिंग इज ऑल गुड, शॉप भी सिक्योर हो गई, शेल्फ्स भी फुल हो गए, स्टॉक भी आ गया, सब कुछ हो गया, बट कस्टमर्स के लिए वैल्यू जनरेट नहीं हो रही. फॉर दोज केसेस या फॉर सच सिनेरियोज आपके लिए की वैल्यू इंडिकेटर्स जो है वो हमेशा फ्रूटफुल होते हैं, या बेस्ड ऑन दोज रीजंस की वैल्यू इंडिकेटर इज एक्चुअली मोर पावरफुल टूल देन key performance indicator, because what you are actually looking at ke what is that one value. The very first question that an agile leader should ask himself and his team, the people he's working with, right? What is that one value that is generating, or that is the most dear to your customers? Identify that thing. जब आपके पास वो आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद all your focus
should be on that value, कि आप उस वैल्यू को देखें कि हाँ जी वो वैल्यू जो है वो आप अपनी iterations में कितनी ज्यादा जनरेट कर रहे हैं, नॉट दिस थिंग कि एंड ऑफ द डे जो है वो हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितना काम कर रहे हैं दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट इज समथिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ। बट वैल्यू कहाँ से आ रही है? वैल्यू कस्टमर जनरेट कर रहा है, कस्टमर के पास जो चीज वैल्यू है आपकी परफॉर्मेंस को भी बेसिकली वही चीज देखेगा। सो आपके टारगेट शुड बेसिकली बी बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स, जिसको कस्टमर खुद से वैल्यू कर रहा हो, ना कि जिनको आप वैल्यू कर रहे हो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? All right, I'll take that as no questions. Second thing that I actually would want to talk about is freedom metrics. Now, what is freedom metrics? हम हमेशा ये वाली चीज के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, हर एक को फ्रीडम, हर एक के पास फ्रीडम होना चाहिए, राइट? कौन कौन इस बात को का हामी है कि हाँ जी हर एक के पास फ्रीडम होना चाहिए? Could raise of hands, maybe unmute yourself. Okay, so I've got at least one raise of hand where Gulfraz is saying this thing. I've got another as well where Numan is saying this thing कि yes हर एक के पास freedom होना चाहिए, right? Now freedom हर एक के पास होना चाहिए, yes, completely agreed on this thing. लेकिन क्या हर एक के पास इक्वल फ्रीडम होना चाहिए? Yes, no, maybe. So एजाइल लीडरशिप की जब हम बात करें तो दैट एक्चुअली सेज दिस थिंग कि यस फ्रीडम हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास इक्वल फ्रीडम नहीं होना चाहिए। Might sound a little strange because in a world where everyone is talking about equality, right? Agile leadership, when it comes to freedom, it talks about equity. And equity जो है वो बेस किस चीज के ऊपर कर रही है? Equity is based on this thing कि हाँ कौन बंदा काम करने के लिए कितना इंडिपेंडेंट है। Those who can work independently, whatever tasks that they are supposed to perform, those who can work independently, they should be given more freedom in comparison to those who are not able to perform their tasks independently. Now, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया with whatever understanding या जो कुछ हम रूटीन में सुनते आ रहे होते हैं, because everyone wants equality. यहाँ पर हम बात करेंगे इक्विटी की। इससे फायदा क्या मिलता है? कंसिडर वन सिनेरियो जहां पर आप एक नया बंदा आया, जब भी कोई नया बंदा आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट पर्सन हैज टू एक्चुअली go through some or has to adjust in the new company culture, right? उसको probably शायद कुछ tools भी सीखने को मिल सकते हैं। टूल्स सीखने को ना हो तो चलें, जो कोड बेस है, जो पुराना ऑब्वियसली कोड पड़ा हुआ है, उसको देखने समझने में उसको टाइम लग जाएगा, और उस चीज के लिए उसको हेल्प चाहिए होगी। वो हेल्प उसको कौन प्रोवाइड करेगा? समवन ऑलरेडी जो कि उस कंपनी के अंदर हो, वो उसको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा, राइट? और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली उन सारी चीजों को हैंडल खुद से ना करना शुरू कर ले। अगर पहले दिन ही उस बंदे को बिल्कुल खुले हाथ छोड़ दिया जाए, that person won't be able to do everything which is required out of that person because उसके पास adequate knowledge नहीं है, और वही chaos वाली सिचुएशन बन जाएगी, मे बी फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन भी बन जाएगी, जहां पर वो ओपनली खुद से कुछ काम नहीं कर पा रहा होगा। सो इंस्टेड कि वो फ्रीडम जो आपने उसको दिया वो उसको हेल्प कर रहा हो, वो उसके लिए बेसिकली डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए, वो भी खुद से काम नहीं कर सकता। आपने उसको खुला छोड़ दिया कि भाई खुद जाके कर लो जो करना है, क्योंकि फ्रीडम है, इक्वालिटी दे दिया आपने। सो दैट्स द रीजन एजाइल लीडरशिप टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि फ्रीडम शुड बी बेस्ड ऑन दिस थिंग कि आपकी
जो काम करने का या बीइंग इंडिपेंडेंट जो है वो कब कितना हद तक आप काम कर सकते हैं. However, one thing, हर एजाइल लीडर का गोल ये जरूर होता है कि उसने जो है वो अपने आप को मजीद से मजीद इंडिपेंडेंट करना है, और प्लस अपने जो लोग जिनके साथ वो काम कर रहा है उसने भी उनको भी इस काबिल बनाना है कि वो मजीद इंडिपेंडेंट काम कर सकें. दैट इज समथिंग जो कि एजाइल लीडर के पास होती है, उसके या एक एजाइल लीडर के गोल के अंदर शामिल है कि वो लोगों को इंडिपेंडेंट काम करने की तरफ लेके जाए. चाहे उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी पड़ती है, जो भी करना है वो उनके साथ काम करे और उन्हें इस जगह के ऊपर लेके जाए कि वो इंडिपेंडेंट काम कर सकें. वंस दे आर एबल टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली, तो उनका फ्रीडम जो है वो उन्हीं लोगों के बराबर हो जाना चाहिए जितना जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करने वाले थे शुरू में. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? I ओके, have a question, जी प्लीज. Hasan. जब हम स्क्रम वैल्यूज़ की जो बात करते हैं तो उसमें भी तो हम यही बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन हम उसमें ये बात नहीं करते कि कोई इंडिपेंडेंट है या कोई, मतलब इक्वालिटी और इक्विटी की दोनों की बात हो रही होती है. हम्म. देखिए, स्क्रम वैल्यूज के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, राइट, या हम ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, राइट, हम्म. लेकिन हम उसमें ये बात नहीं करते कि लोगों को आप इंडिपेंडेंट काम करवाएंगे कैसे. यहाँ पर हम ये वाली बात कर रहे हैं कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट काम करने की तरफ लेके कैसे जाएंगे. एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, आप उनको फ्रीडम, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देंगे. लेट मी शो यू समथिंग. नाउ दिस इज अ फ्रीडम मैट्रिक्स, राइट. यहाँ पर जो है वो आप टॉपिक्स सारे के सारे लिखेंगे, मतलब जो ग्रे वाले बॉक्सेस है उनके अंदर आपने सारे के सारे टॉपिक्स लिख लिए. जिन चीजों के ऊपर कोई भी बंदा काम कर रहा है, आपकी टीम के जो नॉलेज एरियाज हैं, आपने उन सबको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया, राइट. एंड देन जो स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी है, विच इज आपका जो एक्स एक्सिस बन रहा है, उसके ऊपर आपने सपोज 3 स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी जो होंगे वो मेंशन कर लिए. मेच्योरिटी स्टेज 1, मेच्योरिटी स्टेज 2, मेच्योरिटी स्टेज 3. ठीक है. अब जैसे जैसे बंदा एज एन एजाइल लीडर, आपका काम यह है कि हर टॉपिक के अगेंस्ट में आप लोगों को मेच्योरिटी लेवल अप कराने के लिए कोशिश करते रहेंगे. मतलब समवन इज एट मेच्योरिटी लेवल 1, आप उसको मेच्योरिटी लेवल 2 के ऊपर लेके जाएंगे, एंड देन मेच्योरिटी लेवल 3 के ऊपर लेके जाएंगे, जो कि इस सिनेरियो के अंदर हाईएस्ट मेच्योरिटी लेवल है. और जैसे जैसे लोग मेच्योरिटी लेवल के ऊपर बढ़ते जाएंगे या एक्स एक्सिस पे वो आगे मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे उनको गिवन फ्रीडम जो है वो ज्यादा होता जाएगा. सो जो लोग एक जैसी मेच्योरिटी लेवल के अंदर आ रहे हैं उनको एक जैसा फ्रीडम मिलेगा. तो यहाँ पर आपकी बात इक्वालिटी वाली आ गई. बट जो उससे नेक्स्ट मेच्योरिटी लेवल के अंदर आ रहे हैं, एंड ये चीज डिसाइड किस चीज के ऊपर हो रही है कि जी मेच्योरिटी लेवल किस चीज पे बेस कर रहा है, देयर एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली. Means you mean self-organizing, or how much he or she is यस, self-organized. Okay. यस. Got तो आपकी देखें जो आपकी मेच्योरिटी लेवल 3 है, जो कि इस सिनेरियो के अंदर सबसे हाईएस्ट मेच्योरिटी लेवल पॉसिबल है, जब वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पर आप उन्हें 100% फ्रीडम दे देंगे. और जो जो लोग 100% उसके अंदर मेच्योरिटी इंडिपेंडेंट 100% काम कर सकते हैं, सब मेच्योरिटी लेवल 3 के ऊपर है, उन सारों को 100% फ्रीडम मिलना चाहिए. दैट्स वेयर इट कम्स टू इक्वालिटी. लेकिन अगर आप मेच्योरिटी लेवल 3 और मेच्योरिटी लेवल 1 को आपस में कंपेयर करें, तो मेच्योरिटी लेवल 1 के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको एक जैसा फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मेच्योरिटी लेवल 3 वो कम होगा. दैट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन इक्विटी. और ये हम चीज किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, नो अदर मैयर बट दिस थिंग, कि वो इंडिपेंडेंटली काम कितना कर सकते हैं. आई होप आई हैव Okay. आंसर्ड. Yes, thank you. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? ऑलराइट. So the next thing which I actually gonna talk about is, and Usha, what's the time right now? Apologies, I don't have a clock in front of me right now. It's almost 9:30. Okay, fair enough. Thank you.
So the next thing that we're actually going to talk about, that is T12, which is an experimental category. What is T12? It is time to learn. Because हमने एक एरिया फोकस अपने सामने रखा था कि एजाइल लीडरशिप के अंदर there's going to be one area of focus which is learn faster. Now how to learn fast, right? That is based on your time to learn. Because अगर आपने फास्ट करना है किसी चीज को, किसी प्रोसेस को, so first you need to identify कि आपका अभी टाइम कितना लग रहा है, एंड देन उसके कंपैरिजन के अंदर रहते हुए आप उसको तेज या स्लो कर सकते हैं. सो अगर आपने अपने टाइम टू लर्न को कम करना है, यू नीड टू लर्न फास्टर. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका अभी टाइम कितना लग रहा है ऑन योर लर्निंग्स. व्हाट एक्चुअली दैट थिंग मींस, आई विल कम हियर. द लर्निंग लूप. नाउ व्हाट एक्चुअली इज अ लर्निंग लूप? आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, किसी भी चीज की बात कर लें, सो इनिशियली वो शुरू में एक आइडिया होता है जहां से आप इंसेप्शन फेज है, जो आइडिया स्केच आप सबसे पहले वो आता है, देन यू बिल्ड इट, देन यू डिप्लॉय इट, समवन यूजेस इट, एंड देन जो यूज कर रहा है वो उसके ऊपर आपको कोई ना कोई फीडबैक देता है. सो फ्रॉम आइडिया स्केच टू फीडबैक, जहां पर किसी ने आपको कोई फीडबैक दिया, दिस इज डिफाइंड एज वन लर्निंग लूप. जिसको आप कह सकते हैं कि आइडिया स्केच से लेके फीडबैक आने तक आपका जितना टाइम लगा, दैट इज नेम्ड एज टाइम टू लर्न. कि आपका टोटल टाइम आइडिया, जब आपने सबसे पहले जब आइडिया आया, फिर उसके बाद उसको बिल्ड करने में कितना टाइम लगा, फिर डिप्लॉय करते हुए कितना टाइम लगा, फिर उसको लोगों ने यूज कितने अरसे किया, और उसके बाद उनने फीडबैक दिया, राइट? उस सबको हमने गैदर कर लिया. ये जहां तक आते आते में आपका जितना भी टाइम लगा वो आपका टाइम टू लर्न था. नाउ अगर हमने इस टाइम टू लर्न को कम करना है, व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू, हमें इधर बिल्ड फास्ट करना होगा, हमें अपनी डिप्लॉयमेंट जो है उसको करना होगा. जो लोग यूज कर रहे हैं, हम उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं कि वो हमें जल्दी फीडबैक दे दें या हम उनको जल्दी कांटेक्ट कर लें, लेकिन दैट इज समथिंग जो कि हमारे अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है. देयर आर ऑब्वियसली अदर डिपेंडेंसीज, क्योंकि कस्टमर है, यूजर है, हम उस तक बाद में जाएंगे, राइट? हमने फीडबैक को जितने अरसे में कंपाइल किया, उसके एनालिटिक्स अप्लाई किया उसके ऊपर, उसके अंदर से कोई अच्छी चीज निकाली, उस चीज वो भी हमारे अपने कंट्रोल के अंदर है, हम उसको भी कम कर सकते हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, हमारे पास इस वक्त 3 एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं: बिल्ड, डिप्लॉय एंड लर्न फ्रॉम फीडबैक. जब आप एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे हैं या एनालिटिक्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फीडबैक, राइट? हमें इन तीनों टाइम को हमें ये नोट करना होगा कि हमारे पास ये टोटल टाइम तीनों कितने कितने लगते हैं, और उसके बाद हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. वो लुक एट द ऑप्शंस के हाउ वी कैन रिड्यूस दिस. वंस दैट थिंग इज रिड्यूस्ड, मे बी सपोज फॉर मोमेंट डिप्लॉय के ऊपर या बिल्ड के ऊपर पहले हमें लगते थे सपोज 4 वीक्स, लेकिन अब हमने सेम चीज बिल्ड करने के लिए अब हमारा टाइम लगता है 3 वीक्स. सो पहले अगर हमारा टाइम टू लर्न जो है that was 8 weeks, now it's gonna be 7 weeks. क्यों? क्योंकि हमने एक वीक जो है वो बिल्ड का बचा लिया. That's exactly how we improve or we learn faster. छोटी सी एग्जांपल भी है: build, deliver, use, learn, and the complete thing is T12. So build के ऊपर 5 months लगे, the very first example, 5 months. deliver में 1 month, use 3 months हुआ, learn में 1 month लगा, T12. टोटल टाइम टू लर्न जो था आपके पास 10 months का था. सेकेंड टाइम के अंदर बिल्ड के ऊपर आपके लगे 2 months, डिलीवरी के ऊपर आपके हाफ मंथ, 15 days, 2 weeks, यूज पे आपके लगे 2 months. लोग पहले यूज कर रहे थे, लोगों को आदत हुई थी, उन्होंने अपना फीडबैक जल्दी दे दिया.
लर्न के ऊपर जो है वो आपने जो एनालिटिक्स अप्लाई करनी थी उसके ऊपर अगेन आपका हाफ मंथ लगा, और टोटल टाइम आपका जो है वो टाइम टू लर्न जो था वो रिड्यूस होके हाफ पे आ गया, विच इज 5 मंथ्स। एंड सेम वे के अंदर नेक्स्ट उसके अंदर आके उसको मजीद ड्रॉप करके 6 वीक्स के ऊपर ले आया गया। उसमें उन्होंने किया क्या कि अपनी डिलीवरी जो है उसको बिल्कुल जीरो के ऊपर ले गए, कि जो डिलीवरी टाइम है वो 1 मंथ की जगह, फर्स्ट एग्जांपल में देखें दैट वाज 1 मंथ, थर्ड के अंदर आते आते तक उसको 0 डेज के ऊपर ले गए, कि जिस दिन बिल्ड हुआ उसी दिन ही डिप्लॉय कर दिया आपने। तो डिप्लॉयमेंट का टाइम जो है वो खत्म हो गया आपके पास, राइट। कस्टमर्स के साथ में भी अच्छा रिलेशनशिप बना के रख लिया, तो उन्होंने भी कम यूजेज के साथ ही, क्योंकि उसके यूजेज से आदि थे, उन्होंने जो है वो साथ ही फीडबैक भी वापस रिटर्न कर दिया। अब आपके पास, आपको पता लग गया आपके कस्टमर्स की कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको एनालिटिक्स निकालते भी कुछ टाइम हो गया, तो आपने उस चीज को भी ड्रॉप करके 1 वीक के ऊपर ले गया, 6 वीक्स के अंदर आपका टोटल टाइम टू लर्न कंप्लीट हो गया। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज मेंट बाय लर्न फास्टर। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन? Okay, I'll take it as no questions. And one more thing that we're actually going to talk about today is habit metrics. Culture leader. So आपका जो एजाइल लीडर है उसको एक राइट एनवायरनमेंट के साथ राइट कल्चर वो भी प्रोवाइड करना है। हमारे पास हैबिट्स जो होंगी वो वर्क प्लेस पे दो तरह की हो सकती हैं। वन इज गुड हैबिट्स, सेकंड इज बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स जो है वो एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती हैं, जो कि ऑब्वियसली गुड होता है, जिसका एंड रिजल्ट भी गुड होता है। एंड रिजल्ट गुड से क्या मुराद है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लोग कुछ सीख रहे हैं, टाइम टू लर्न कम हो रहा है, लोग मेच्योरिटी लेवल पे ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए हो रहे हैं, कस्टमर्स के लिए मोर वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं, राइट। और इस सब का इनवर्स जो होगा दैट इज बैड हैबिट्स। सो एनीथिंग जो कि वो बैड हैबिट्स क्रिएट करवा रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज, जिसको हम क्या कहते हैं कि आपके टीम के कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। एंड एज अ लीडर यू हैव टू डू समथिंग टू डील विद दोस थिंग्स, ताकि वो जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर लॉस इम्पैक्ट आ रहा है उसको डील किया जा सके। You guys with me? Yes, no, maybe? Yes. Okay. So, हैबिट मैट्रिक्स हर टीम के अंदर अगर आप देखें तो ये दोनों तरह की हैबिट्स पाई जाती हैं। गुड हैबिट्स भी होती हैं, बैड हैबिट्स भी होती हैं। किसी में गुड हैबिट्स ज्यादा होंगी, किसी में बैड हैबिट्स ज्यादा होंगी, राइट। एक एजाइल लीडर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो गुड हैबिट्स हैं उनको मजीद प्रमोट किया जाए और जो बैड हैबिट्स हैं उनको खत्म किया जाए। बट हाउ टू डू दैट? एक राइट कल्चर सेट करना, वो वो कैसे किया जा सकता है? सो वन थिंग जो कि एजाइल लीडरशिप टूल किट हमें देती है, वो कहती है कि गो एंड हैव अ वर्ड विद योर टीम। नेम एंड शेम वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बट आस्क एवरीवन इन द टीम to gather around, maybe in a conference room or wherever you would want them to be, ठीक है, and ask them for this thing that without taking any names, right? हर एक के ख्याल में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि टीम के कल्चर को किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं। Everyone probably just write them down, right? जब हर बंदा वो अपने पास लिख ले, देन कंबाइन कर लिया जाए उन सारों को, और कंबाइन करने के बाद टीम के साथ रहते हुए आप उस चीज को स्टैक रैंक करें। मे बी यू कैन डू वोटिंग।
हम जिस तरह से अपनी रेट्रो के अंदर वोटिंग करते हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग यार व्हाट आर दोज आइटम्स जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा जल्दी काम करना चाहते हैं, राइट? So we can apply the same technique over here and we can do a stack ranking based on this thing कि जी कौन सी ऐसी areas हैं जो कि हमारी टीम को ये लगता है, right, कि उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा एड्रेस होने की ज़रूरत है क्योंकि वो टीम के मोरल को, टीम के कल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं. Once that thing is done, now what you actually have a stack ranked list of the bad habits that your team have, right? और उन बैड हैबिट्स को लेके फिर हम ये देखेंगे कि अब इन बैड हैबिट्स के साथ हमें और क्या करना है या इन बैड हैबिट्स को हमने ठीक तरह से या गुड हैबिट्स में कन्वर्ट किस तरह से करना है. व्हाट आर दो स्पेसिफिक थिंग्स जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. टेक हेल्प फ्रॉम योर टीम. डू नॉट बी देयर गाइडिंग लाइट के टेल देम कि हाँ अब आप ये करेंगे, अब आप ये करेंगे और आप ये नहीं करेंगे. नो, ask for their help, ask them for this thing कि जी how they think कि इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है, एक बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, right? And then together as a team make this thing on your agenda for probably the next month, 2 or so, whatever time your team feels like कि हाँ जी हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे. गलती करेंगे कुछ और तरह की करेंगे, हैबिट रखेंगे किसी और तरह की रखेंगे, बट ये वाली हैबिट हम दोबारा वापस लेके नहीं आएंगे. एंड देन वन बाय वन आप पहले एक चीज को एड्रेस करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरी को करेंगे, फिर चौथी को करेंगे. और दैट्स हाउ आप अपनी टीम की जो बैड हैबिट्स हैं उनको एड्रेस करते हुए उनको गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. फ्यू थिंग्स जो कि शायद अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो यस, अगर किस टीम के अंदर बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हो, राइट, पीपल माइट नॉट ट्रस्ट यू, right? People might not be openly share their ideas or views or their observations with you. Yes, these challenges are there. But as an agile leader, you actually have to ensure them, set the ground rules first. You actually have to ensure them that they can trust you. And for that thing, you actually have to be, practicing all the other things which I mentioned on this track. Because if you're going to show them that yes, whatever you are preaching is helping them, at that point in time they would be able to, they would get more open with you. They'll talk more about whatever they are feeling. Because इस चीज को सक्सेसफुल कराने के लिए the most important thing is कि लोग आपके साथ openly बात कर रहे हो. You need to have their trust. And trust, you can only win people's trust through your actions. आप क्या कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं आएगा. जो आप कह रहे हैं वही अलाइन भी होना चाहिए उसके साथ जो आप कर रहे हैं. Any questions on this one? Okay. So sorry, I had a Gigi, question. you please. Yeah, you just mentioned you have to come up, kind of a meeting, a get together with your team to get the feedback. Isn't should be an outcome of all the retrospectives you do with the team? For example, you got 4 sprints and you got 4 retrospectives, and then some points definitely you can follow for the next sprint, but some points you can't follow. So the outstanding items would be the part of this kind of agenda. और जो चीजें for example आप एक separate meet, why we need a separate meetup to ask people what things we need to change. That should be a part of retrospectives and a series of retrospectives, you can say. No? Definitely. Agile leadership is not a concept for I would say the
Scrum Masters. Yes, Scrum Masters भी कर सकते हैं. Other people on the team, definitely they can do that as well, right? And I can see Zishan Bhai on the call, so maybe he'll definitely have, a different opinion on that thing. But my personal feeling is agile leadership is, this is a concept more towards the operational leadership, people who are not part of the team. So those who are not part of the team, they may or may not have all the visibility, what's going on or what's going around in the team, right? To me, it's a concept more for those leaders, right? Yes, a scrum master can do that as well, right? आपकी retrospectives के अंदर yes, अगर आपकी टीम already all the scrum values को follow कर रही है और उनको practice भी कर रही है, then yes, हमें शायद जो हमारे retrospective के items हैं, हम उनको उनके अंदर already ये बात कर रहे होंगे. But usually, per the experience that I have, I haven't seen many people talking about the bad habits, not the bad work, but the bad habits in their retrospectives. उसके लिए probably शायद effort थोड़ी सी एक अलहदा से करनी पड़ सकती है. But yes, अगर retrospectives के अंदर वो item मौजूद हैं, तो definitely वो item feedback वहां से लेके आगे बढ़ा जा सकता है. Yeah, appreciate it. Thank you so much. Last thing, definitely, ये चीज़ें जो हैं इनके लिए अगर separate leadership है, different layer है जिसको आपने engage करना है तो आप कर सकते हैं. But in my perspective, अगर आपके retrospective में ये चीज़ें नहीं हो रही, so और ये चीज़ें जो bad habits है team उनके ऊपर openness के साथ नहीं बोल रही, then we have to create a culture first where you give a courage to team to talk about these things in retrospectives. But that's totally separate topic, and we can discuss that later in some other meeting. Thank you so much. Yeah. Yep. So cultural leader, that's definitely part of the agile leadership thing, and definitely वो culture set करना ही जरूरी है. And this is something कि even अगर आप as a scrum master भी, right, your team is not practicing openness, right? Maybe habit metrics is something through which you can adjust that or address that. Any other questions, comments, concerns, anything? See how the agile leadership is different than the leadership. How the agile leadership is different than the leadership, right? So we talked about it at the very start of the call that when we talk about traditional leadership, that's more about this thing that let's follow me. Let me take you towards one North Star. Maybe I'm leading by example, all those kind of things. However, when we talk about agile leadership, to me, it means more about that how the agile leader is supposed to create the right environment for the team to grow. He's basically there to help them, to assist them, not probably to lead them. They'll be their leaders, their own leaders. They should be able to work independently. You shouldn't be there always to tell them. So to me, agile leadership is all about providing the right culture where people can thrive and grow. So agile leadership, it means it's more close to the servant leadership. Yep. Yep. Any other thing? One thing that I actually cause now I'm gonna take it that there are no more questions. So one thing that I actually gonna recommend, there is a book named as Agile Leadership Toolkit. From wherever you can find a copy of it, please do so and go through it, because obviously I have touched based on only 4 tools out of the 8, and obviously whatever I have told you in this past 40-45 minutes, I think that was just the surface of it. So if you like these concepts, please spend some time reading the book, and that's going to help you a lot in understanding what actually agile leadership is, and hopefully you guys gonna start practicing it too. Thank you so much, everyone. Thank you, Hasib.
for a very informative and knowledgeable session. Inshallah, we will benefit from your knowledge in the future as well. Thank you, respected guests. This is the end of the session, and we will looking forward for another session from Pakistan Agile Education soon. Thank you. Good night. Allah Hafiz. All right. Thank you Thank you so guys. much. Thank you guys. Bye bye. Thanks, guys. Love it.